Good morning, Standard 12 students. Let's we understand the plant breeding for quality food. Do you know how many population of world still not getting or not match the balanced diet? Though 840 million people could not get their food के 84 करोड़ ऐसे लोग हैं जो आज भी उनको दे डू नॉट गेट एडिक्वेट फूड मीट देयर डेली नीड्स, मतलब डेली बैलेंस डाइट जो नीड है उनको नहीं मिलता है इन वर्ल्ड. फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स, amino acids and proper fats that could not be included in their food. जो मिला वो खा लिया, 2 टाइम में 1 टाइम मिलता है वैसे खा दें, because they do not have the continuous money or deficiency or hidden hunger because they cannot afford their enough fruits, vegetables, legumes, fish and meat. So द प्लांट ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव फूड क्वालिटी, मतलब वो जो खा रहे हैं उसमें उनको वो चीज़ मिल जाए, तो दिस इज कॉल्ड द इम्प्रूव्ड क्रॉप वेराइटी. इन दैट वी आर लर्न अबाउट टुडे वी आर लर्न अबाउट फॉर इम्प्रूव्ड इन दैट द बायोफोर्टिफिकेशन. तो कैसे फूड को इम्प्रूव किया जा सकता है, दैट वी लर्न इन अ बायोफोर्टिफिकेशन. What is biofortification? The biofortification is nothing but breeding crop with the higher level of vitamins and minerals or higher protein and healthier fats. That is called, to mean that the improving the public health, that is called biofortification. In general we can say the biofortification ऐसा है, मतलब कि breeding the healthy crop which full of minerals, vitamins, proteins and fats. A balanced fat, protein, vitamin and healthy crop, that is called biofortification. Biofortification generally done for the, what is to be consideration in that? Number 1, the protein content. कि biofortified plant में protein content होना चाहिए proper in amount. Number 2, oil content and quality. Number 3, that is vitamin content. And number 4, that is micronutrient mineral content, जो क्रॉप में ग्रो किया जा सकता है. Let's we take about example of that. In year 2000, maize hybrids that had twice the amount of the amino acids, lysine and tryptophan as compared to existing maize. Okay. तो इसमें पहला एग्जांपल है मेज का कि 2000 के साल में मेज में ऐसा मॉडिफिकेशन किया गया कि जिसमें उसमें ट्रिप्टोफान एंड लाइसिन ऑलरेडी प्रेजेंट है इन मेज, दिस 2 अमीनो एसिड्स, बट उसका अमाउंट कितना किया गया, टू इम्प्रूव दैट द जेनेटिकली चेंज करके इम्प्रूव्ड क्रॉप में डबल किया गया. नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल अबाउट द व्हीट वेराइटी. व्हीट वेराइटीज नेम इज एटलास 66. इन बुक में पेज नंबर 176 पर आप जाएंगे तो ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है. The wheat variety Atlas having the high protein content. Atlas के अंदर, Atlas 66 के अंदर क्या होता है, high protein content. Usually protein content is very less in a wheat plant, but in a Atlas 66 there are the more protein content to be we are found in that. Okay. So right, third example is about iron fortified rice. Generally iron level बहुत low होता है in rice. So we can include the gene of that particular iron level, so they can be produce the iron in more. तो डोनर प्लांट के थ्रू उसके जीन लिए जाते हैं, and we find forming the iron fortified rice also. So 3 एग्जाम्पल है यहाँ पे. maize that containing the tryptophan and lysine amino acid twice, Atlas 66 wheat variety which is consisting the general wheat से ज़्यादा protein content. Then third variety is iron containing rice.
Okay, so the Indian Agriculture Research Institute that is looking about the biofortification in Indian Agriculture Research Institute, जिसको कहते हैं एरी, that is situated in New Delhi. So इंडिया में जो भी क्रॉप वैरायटी प्रोड्यूस होती है, that crop varieties could be मैक्सिममली जो कोई इंस्टीट्यूशंस ग्रो करता है तो वो है. इसमें कुछ एग्जाम्पल है. द विटामिन ए एनरिच कैरेट्स, विटामिन ए कंटेनिंग कैरेट्स वो उन्होंने प्रोड्यूस किए हैं. कैरेट, स्पिनेच, पंपकिन, ये 3 ऐसे प्लांट्स हैं दैट आर कंसिस्टिंग द विटामिन ए. विटामिन सी एनरिच बीटर गॉट, बाथवा, बाथवा एक तरह की भाजी होती है जिसको हम अभी गुजराती में तांदळजा की जो भाजी कहते हैं कि भाई पालक के अलावा, मेथी के अलावा जो भाजी आती है थर्ड टाइप ऑफ, दैट इज कॉल्ड चिल की भाजी के साथ वो होती है जिसको बोलते हैं बाथवा, मतलब भाजी. ओके, मस्टर्ड, टोमेटो, ओके, एंड आयरन एंड कैल्शियम एनरिच स्पिनेच एंड बाथवा, ये 2 भाजी है जो क्या उसमें होता है. तो ये सारी बायोफोर्टिफाइड वेराइटीज है जिसमें ये क्या दूसरी तरीके से जीन को क्या किया गया है, मॉडिफाई किया गया है. सो दिस इज अबाउट द बायोफोर्टिफिकेशन. इसके अलावा कुछ एग्जांपल्स है. प्रोटीन एनरिच बीन्स, बीन में तो जनरली प्रोटीन होता है बट ज्यादा. ओके, देन ब्रॉड एंड लबालब फ्रेंच एंड गार्डन पीस, ये जो पीस है तो पीस वेराइटी, दीज आर एनरिच विद द मच मोर प्रोटीन. नाउ लेट्स बी अबाउट दूसरा इंप्रूव वेराइटी में दूसरा एग्जांपल आएगा. द सेकंड थिंग इज द सिंगल सेल प्रोटीन. व्हाट इज सिंगल सेल प्रोटीन? सिंगल सेल प्रोटीन क्या होता है? जनरली द प्लांट होल कैन बी प्रोड्यूसिंग द प्रोटीन इन देयर सीड्स एंड ऑल दैट इज कॉल्ड द कॉमन प्लांट प्रोटीन. The animal can be rebuild the protein and store in their body, that is called animal protein. But the single cell protein term we can say the microbes or the cells of microbes like bacteria and fungi are to be used to produce large amount of protein. So that is called single cell protein. इसमें एक example ले लेते हैं. The methanogens bacteria, methanogens मिथनोट्रॉप्स, ये जो बैक्टीरिया है, इफ यू टेक 250 ग्राम ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोड्यूस 200 ग्राम ऑफ प्रोटीन एज कंपेयर टू 200 और 250 kg काउ जिसका वजन 200 से 250 किलो होता है, वो भी 200 ग्राम पर डे प्रोटीन बनाती है. इतना ही प्रोटीन सिंगल 250 ग्राम बैक्टीरिया. अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि द काउ इज अ बिगर सिस्टम दैट प्रोड्यूसिंग द डिफरेंट अदर प्रोटीन्स ऑल्सो एंड अदर फैट्स एंड अदर मिल्क और दूसरी बहुत सारी चीजें उनमें होती है. तो ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, लेकिन इसका काम क्या रहता है? जस्ट बाय प्रोडक्ट हमको प्रोटीन के मिलते हैं. सो समझ में आया? सिंगल सेल प्रोटीन मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट हेल्पफुल टू प्रोवाइड द प्रोटीन सोर्स और मिनरल विटामिन सोर्स, दैट इज कॉल्ड द सिंगल सेल प्रोटीन, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता हो. तो दिस इज द वन ऑफ द एग्जाम्पल. सेकंड एग्जाम्पल इज अबाउट स्पिरुलिना. सेकंड एग्जाम्पल किसका है? स्पिरुलिना है. ओके, द मोर देन 25% ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन. क्योंकि हमारे फूड में प्रोटीन की कमी है, खास करके गुजराती लोगों के फूड में तो बहुत ज्यादा है, बिकॉज वी आर मेनली वेजिटेरियन. तो ये सारे जो प्रोटीन्स हैं दैट ओवरकम द डेली नीड्स ऑफ प्रोटीन फॉर अस. तो ये माइक्रोब्स, द सोर्सेज फॉर एनिमल एंड ह्यूमन प्रोटीन, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी अल्टरेट द सोर्स, दैट इज कॉल्ड द सिंगल सेल प्रोटीन. अब सिंगल सेल प्रोटीन में हम आगे कुछ बात करेंगे. तो लेट्स वी टेक द एग्जांपल. एक algae है, ब्लू ग्रीन algae, दैट इज कॉल्ड स्पिरुलिना. द ब्लू ग्रीन algae नेम इज स्पिरुलिना. इसका ज्यादातर आपको मालूम है मार्केट में अवेलेबल है, दैट प्रोटीन कॉल्ड इज स्पिरुलिन. स्पिरुलिन इज द प्रोटीन
that could be nothing but produced by that particular algae. Okay, इसके अलावा एग्जाम्पल है, सर्टन एग्जाम्पल इज देयर द मिथिलोफिलस मिथनोट्रोपस is high rate of biomass production and growth, can be expected the produce 25 tons of protein that is edible. Mushrooms are also that consisting the large amount of protein in that. तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब algae, fungi और उससे जो प्रोटीन आता है, तो you know that they having the cellular structure, that why it is called the single cell protein. Now in our chapter the next point is to be remaining about the tissue culture. We can discuss in detail because today I have certain problem regarding to the network issue और फ़ोन में कुछ थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए आज यहाँ तक हम स्टॉप करेंगे. ओके, सो नेक्स्ट विल बी अंडरस्टैंड अबाउट टिश्यू कल्चर एंड देन ओनली आई एम ऑल्सो स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर ऑल्सो. So this is all for 12th standard students. Thank you very much.